Behind the struggle, there's a person of incredible strength. Today, we will be embracing diversity with mindful inclusivity with the parent advocate Vandana Gautam, proud mother of Saksham, who is one of the co-author of Talking Fingers Volume 2. Namaskar, good morning, Sat Sri Akal, Adab to all our viewers here. I'm Divya Gosai, your host and dope for the day, and a proud ambassador of the team The Spectrum Autism. Before I call upon the screen our guest of the day, I would like to share a brief introduction about her. Vandana Gautam. She is a beautiful and a dedicated mother of Saksham. She is a BTech computer science graduate and worked in IT industry for about 15 years. She chose to be with her son to give him a better life by training and guiding him. She homeschooled Saksham for more than 3 years. After working with special school and extended her support to bring the change in the society by joining Sunrise Learning Noida, an organization that was founded by Dr. Sonali Kataria. She's now working as an ICT teacher and is also an Awas certified professional. Her incredible support to the society to bring awareness is unmatchable. So let's welcome Vandana ji. Thank you. Thank you so much, Divya ji. Namaste. Namaskar, everyone. And a very good morning. Very good morning. So here I am with you all. And it's been a pleasure to be part of Talking Fingers and to be part of this show, like is this talking experience we will be going forward. Definitely, ma'am. And just a big thanks to you for sparing your time and gracing the platform and coming here and sharing your insightful thoughts with us. So, Vandana ji, if you permit, let's start. Yes. Thank you so much. So, Vandana ji, with the right mindset and support, every obstacle can be overcome on the journey towards growth after a diagnosis. So you are not alone, and there are resources available to help you overcome any challenges that come your way. So please share your valuable insight of Saksham's journey. Okay. So I can talk in Hindi as well? Yes, ma'am. You can use any language, ma'am. Okay. So जैसा कि दिव्या जी ने बताया कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और अगर आपका माइंडसेट आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर पॉसिबल विच वी कैन डू विद आवर चिल्ड्रन. तो मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई तो मेरा जो थॉट था ना वो इतना पॉजिटिव नहीं था. आई वॉज नॉट लाइक कि ओपन माइंडेड भी नहीं था. मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई, जब डायग्नोसिस हुआ, तो एक ऐसी फीलिंग आई कि इट इज द एंड ऑफ वर्ड, जो शायद सभी को आती है. कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ शायद नहीं कर पाते. लेकिन एक ऐसी फीलिंग आई थी जब डायग्नोस हुआ. ही वाज लाइक 20 मंथ्स ओल्ड एट दैट टाइम. तो प्रॉपर डायग्नोस भी नहीं होता था 20 मंथ्स में. तो दे सेड कि अभी आपको 1 साल और रुकना होगा बिफोर ही टर्न्स 2. उसके बाद हम कुछ उसको बताएंगे कि कोई ऑटिज्म है या नहीं है. बट माँ का दिल कहता था कि कुछ तो है. बट इट वाज लाइक कि शायद बस अब सब कुछ एंड हो गया है एंड हमारी जो लाइफ है वो स्टॉप हो गई है. इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इट वाज लाइक अ डार्क टनल जिसमें हम कैसे जाएंगे वो भी समझ में नहीं आ रहा था. तो हमारी थेरेपी स्टार्ट हुई व्हेन सक्षम वाज 22 मंथ्स ओल्ड. तब हमने अर्ली इंटरवेंशन में उसे एनरोल कराया. वी यूज्ड टू ट्रेवल लाइक द प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग. From there, it was 1 hour every day, 1 hour travel. You know, in NCR, travel is a big task. तो हम जाते थे. सक्षम 2 साल का भी नहीं हुआ था, उसे लेकर इतनी दूर जाना फिर वापिस आना. एंड
and we wanted quickly to cure him at Correct. that time. हमें लगता था कि जल्दी जल्दी और जितना ज्यादा थेरेपीज करेंगे उतना जल्दी मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा. आई एम्फेसाइज ऑन द वर्ड ठीक हो जाएगा, जो कि जी जब हमारा बच्चे का डायग्नोज होता है ना, तो शायद सभी पेरेंट्स के मन में ही आता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए. बिल्कुल. धीरे धीरे जब हम आगे बढ़े, तब हमें समझ में आया कि मेरा बच्चा कहीं से बीमार तो था ही नहीं, हाँ उसे जी, क्यों ठीक नहीं. करना था. वो कहीं से भी बीमार Right. नहीं था, उसे मुझे क्यों ठीक करना था, ये समझने में 4 साल से ज्यादा लग गए. 4 या 5 साल लग गए ये समझने में कि कुछ भी ठीक करने के लिए नहीं है. बिल्कुल. His thinking is different, he is different, his way of perceiving the things is different, and he is just like you and me. It is like Absolutely. हम मैं कुछ और सोचती हूँ, दिव्या शायद कुछ और सोचती है, दिव्या के थॉट्स अलग हैं, मेरे थॉट्स अलग हैं, so we are two Exactly. different persons. And similarly, Saksham is also a different person who thinks in Correct. a different way Right. and who perceives Absolutely. the thing in a different way. ये समझ में आने के लिए बहुत थेरेपीज, बैक टू बैक रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड एक वो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ अपने स्कूल में भी पेरेंट्स को. एंड कि हम ना एक जादू की छड़ी ढूंढते रहते हैं. जब बच्चे का डायग्नोज होता है, हम वो Correct. जादू की छड़ी ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसे हम मैजिक वैंड बोलते हैं. एंड वी कम गो टू एवरी थेरेपी, लाइक वी डिड लाइक एक छोटा सा हमने वो किया था, प्ले किया था कि वी कुड लाइक अ पेरेंट गोज टू एवरी थेरेपिस्ट, go to the speech therapy and ask them, do you have that magic wand जिससे मेरा बच्चा बोलना शुरू कर दे. Do you Correct. have the magic wand जिससे उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए. वो जादू की छड़ी ढूंढते ढूंढते में हम ये भूल जाते हैं कि जादू की छड़ी तो हमारे ही हाथ में है, और वो True. जादू की छड़ी है हमारी एक्सेप्टेंस. जिस Abs- दिन हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक करने को कुछ नहीं है, ये तो जस्ट लाइक मी एंड यू, ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक. एंड वो मेरा बच्चा बच्चा है, जैसा Right. आप किसी और के बच्चे हैं, वैसे ही वो भी मेरा बच्चा है. और बिल्कुल. वो अम, हर इंसान की तरह वो भी उसी तरह से सोचता है, उसके भी इमोशंस हैं, उसकी भी फीलिंग्स हैं. जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाती है ना कि कुछ भी गलत नहीं है, उस दिन वो जादू की छड़ी आपके हाथ में आ जाती है. वो जादू की छड़ी आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है. So true. जो So आपने true. पॉजिटिव माइंड सेट की जो बात की, तो ये हाँ जी. रियलाइजेशन मुझे हुआ. सक्षम की थेरेपीज हमने 2 इयर्स में स्टार्ट की. 6 इयर्स तक तो हम, जब सक्षम 6 इयर्स ओल्ड हो गया, तब तक तो हम one therapy to another therapy center, and I was also working at that time. So from office to therapy center and from therapy centers to office, यही लाइफ थी हमारी. हम कार में ही खाना खाते थे, हम कार में ही नैप ले लेते थे. मैंने अपने एक छोटे से बच्चे को इतना बिजी कर रखा था कि इतना कोई एक बड़ा ऑफिस मतलब अच्छे काम करने वाला इंसान भी उतना बिजी नहीं होता होगा जितना मेरा छोटा सा एक बच्चा बिजी रहता था. सुबह 7 बजे से घर से निकलना और रात को 7 बजे या 8 बजे थेरेपीज वगैरह सब कंप्लीट करके घर आना. मशीन बन गए थे हम लोग बिल्कुल उस भागा दौड़ी में. एंड वी डिडंट रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग अप, वी वर गोइंग लाइक दिस. Right. हमें Right. हमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सोचने का टाइम तो मिल ही नहीं रहा था हमें. बिल्कुल. और मेरा बच्चा फिर हमारी ये कंप्लेंट्स रहती थी थेरेपिस्ट के साथ कि मैम इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो अभी भी उतना ही हाइपर है, अभी भी नहीं बोल रहा है, अभी भी कुछ नहीं कर रहा है. थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ करता था तो लगता था कि हाँ, जैसे उसने कोई पानी के लिए पा बोल दिया, या उसने स्टॉप बोलने पर स्टॉप कर दिया 1 सेकंड के लिए, तो लगता था कि हाँ शायद कुछ हो रहा है. फिर अगले दिन फिर से ऐसे ही लगता था कि नहीं, he's still that hyperactive, he's still running around, he's still not speaking. 6 years में एक और चीज हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट में होती है, मुझे अपने बच्चे को स्कूल में डालना है, मेन स्ट्रीम Right. में डालना Right. है. Right. अगर मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम में चला जाएगा
देन हाफ से ज्यादा जो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में वो सॉल्व हो जाएंगी. So like any other parent, we also had this thought कि एक बार स्कूल चला जाए. अभी तो क्या है ना, थेरेपी सेंटर के चक्कर लगाते रहते हैं. जब स्कूल जाएगा ना, जी, बच्चों के बीच में जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी. फिर तो वो स्कूल में रहेगा तो हमें रनिंग अराउंड भी नहीं करना होगा. करेक्ट. एंड दैट वाज द बिगेस्ट लाइफ चेंजर इन आवर लाइव्स. हमने उसे मेन स्ट्रीम में डाला एंड सक्षम वाज नॉट रेडी. He was not ready for that exposure. He was not ready for that social environment. And in a month, there were like kind of meltdowns we could never understand. उस वो वाले मेल्टडाउन और वो वाला सक्षम ना मैंने पहले कभी देखा था और ना उसके बाद मैंने देखा है. जी, जी. जो मेन स्ट्रीम में जाने से उसे क्या एंजाइटी हुई, हम्म. क्या क्या हुआ अम, उसके अंदर क्या चल रहा था, वो तो हम नहीं जान पा रहे थे. ही वॉज लाइक कि लगता ही नहीं था कि ये मेरा वही बच्चा है. जी. शैतान तो वो पहले से ही था, लेकिन वो खुशी खुशी शैतानियां करता था, दौड़ता था, भागता था. लेकिन जब वो स्कूल में गया तो उसकी जो एंजाइटी लेवल था या क्या जो भी हुआ वहां, मतलब उसने जो कैसे परसीव किया उस एनवायरनमेंट को, वो हम्म. बहुत एंशियस रहने लगा. बहुत रोना चिल्लाना, खाना खाना छोड़ दिया. एंड बीमार हो गया. देन वी हैड टू हॉस्पिटलाइज हिम. तब तब मुझे और स्कूल ने तो डिसाइड की नहीं, अब आगे नहीं हम कर पाएंगे, तो जी. आप लोग इसके लिए कोई स्पेशल स्कूल ही देख लीजिए. हम्म. मुझे धक्का लगा लाइफ में कि अरे हम तो ये सोच रहे थे कि अब तो लाइफ सॉर्टेड हो गई है, हो अब जाएगा. हम अपनी जॉब आराम से कर पाएंगे और ये स्कूल जाएगा और थोड़े दिनों में स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा और हम्म. हमारा लाइफ जो है वो अच्छे आगे की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ेगी. लाइक एनी अदर पेरेंट. अब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि कि ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतनी थेरेपीज देने के बाद, इतना सपोर्ट सिस्टम 24 आवर्स मेड, ड्राइवर, एवरीथिंग एवरीथिंग फॉर सक्षम, स्टिल वी आर एट दिस पॉइंट जहां पे हमें अभी आगे का रास्ता फिर से अंधेरा है, डार्क टनल, जहां कहाँ जाना है नहीं पता है. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरी एजुकेशन और me being his mother, what is the use if I am not able to do anything for him? Then I decided कि अब बहुत हो गया जॉब, तो आई नीड टू बी अ पार्टनर इन हिज जर्नी. अभी तक तो मैं पीछे से उसे धक्का दे रही थी ना. अब अभी साथ आई वॉज करेंगे. नॉट एन एक्टिव पार्टनर इन हिज, लाइक ही वॉज गोइंग टू राइट. थेरेपीज एंड आई वॉज गोइंग टू ऑफिस. वो थेरेपी में ही जाता था, मैं उसके साथ खुद से नहीं करती थी ज्यादा कुछ काम. थोड़ा बहुत कितना कर सकते हो जब आप बच्चे ही थेरेपीज में जी. है और आप भी बिजी हो, तो इतना काम टाइम नहीं मिल पाता था. अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे उसका पार्टनर बनना पड़ेगा. और बिल्कुल. पार्टनर अपने सक्षम जैसे बच्चे का पार्टनर बनना ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में डिसाइड किया और बन गए. उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा, बिल्कुल. किसी से तो सीखना पड़ेगा. तो हमने देहरादून में एक रेजिडेंशियल सेटअप था. हमने हम्म. मैम से बात किया, डॉक्टर ये मिसेस सरस्वती सिंह. हम उनके यहाँ गए देहरादून में. वहां पर मैम की गाइडेंस में वी यूज टू लिव नियर बाय द रेजिडेंशियल. हम रेजिडेंशियल में सक्षम को मतलब रेजिडेंशियल में नहीं गए सक्षम के लिए, डे डे वाला जो सेटअप था उसमें गए. राइट. हमने जी. वहीं पर पास में एक घर लिया और वहां पर हम रोज सुबह 8:30 जाते थे और रात को 8:30 वहां से वापिस आते थे. ओके. देन आई वॉज जस्ट ओनली, अभी तक तो मैं केवल सक्षम को ही जानती थी, केवल सक्षम ही मैंने देखा था. अब मैंने बाकी बच्चों के साथ जो मैंने देखा कि अरे हम अकेले नहीं हैं, देयर आर मेनी मोर, एवरीबडी राइट. इज गोइंग थ्रू देयर ओन स्ट्रगल्स. तब ये रियलाइज हुआ. और फिर एक चीज ये रियलाइज हुई कि जब आप सीख जाते हो ना, तो आप चेंज ला पाते हो. बिल्कुल. 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 अगर आप खुद से नहीं, अब चाहे आप कुछ भी सीखो, चाहे आप वो किसी की हेल्प से कराओ इम्प्लीमेंट,
लेकिन आपको उस चीज का जानना बहुत जरूरी है, राइट। जो मुझे नहीं आता था अभी तक। तो मैंने मैम के साथ, मैम की गाइडेंस में सीखना शुरू किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे बच्चे अगर स्ट्रक्चर्ड रूटीन, स्ट्रक्चर्ड वे में रहते हैं तो दे कैन डू वंडर्स। राइट। एक पूरा शेड्यूल अगर उनको दिया जाए, अगर उनको पूरी क्लैरिटी दी जाए कि क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या हम करने वाले हैं, अ, वो क्लैरिटी वो समझते हैं और वो अच्छे से कर। तो यहाँ से हमारा जो माइंड सेट था, जो डार्क टनल देखता था, उस डार्क टनल के अंदर एक छोटी सी रोशनी हमें दिखाई देनी शुरू हो गई कि हाँ है रास्ता, हम आगे बढ़ सकते हैं। 6 मंथ्स हम वहां पर रहे, अच्छे से सीखा। फिर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बिकॉज वी वर लाइक अपार्ट, हिज फादर वाज हियर इन एनसीआर एंड वी वर इन देहरादून। सो वी थॉट कि व्हाई टू ब्रेक द फैमिली, वी केम बैक टू एनसीआर। अब फिर again we went to some NGO, was an NGO in Noida, where I volunteered as a parent support. तो 6-7 months हम वहां पर भी रहे। जब और बच्चे देखे और बच्चों के साथ एक्सपोजर हुआ तो और सीखा। अपने बच्चे के, आपको सीखने से और दूसरे बच्चों के साथ काम करने से ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं या आप किसी और पेरेंट की हेल्प कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे बच्चे के साथ काम करते हो या दूसरे पेरेंट के साथ काम करते हो या दूसरे पेरेंट के साथ शेयरिंग करते हो ना, आप जी। खुद के लिए सीखते हो, आप अपने बच्चे के लिए सीखते हो। दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग कि जब आप, अभी तक तो आप केवल एक ही बच्चे को देख रहे हो पूरा दिन, 24 घंटा वही है बच्चा, तो आपको समझ में नहीं आता। लेकिन जब आप 8-10 बच्चों को देखते हो और उनके साथ क्या स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं, किसी के साथ कोई तो उससे 2 साल बड़ा है, कोई 2 साल छोटा है, तब आपको समझ में आता है कि गैप्स कहाँ रह गए थे और आगे जाकर कैसे उनको फिल करना है। तो करेक्ट। कहने के लिए होता है कि हम एज अ पेरेंट सपोर्ट जा रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, हम पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, नहीं, हम खुद की हेल्प करने के लिए। ट्रू। ट्रू। मोस्ट ट्रू। ऑफ द पेरेंट्स जो प्रोफेशनल्स होंगे, वो उन उनका जो मेन पर्पस होगा ना, वो अपने बच्चे के लिए ज्यादा सीखा होगा, मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे, मेरी जो एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से जो माइंड सेट चेंज हुआ, देन वी स्टार्टेड, वो डार्कनेस थोड़ी 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 कम होती गई एंड उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब होम स्कूलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वंडरफुल। ये है सक्षम है। वंडरफुल। तो उसके सो बाद वंदना जी, सबसे पहले तो मैं ही आपको बहुत बड़ा एक पावर हग देना चाहूंगी, जो बहुत ब्यूटीफुली आपने इंसाइटफुल थॉट्स अपने शेयर किए हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे हमारे बच्चों को, उससे पहले हमें खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शायद शुरू में कुछ दिक्कत आती है क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि नॉर्मल और थोड़ा अलग अगर हमको फील होता है, उसके अंदर हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। पर हम जब ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मेरा बच्चा नॉर्मल ही था, मेरे को एक्सेप्ट करना था, बच्चा वॉज टू टेंडर, टू स्मॉल कि वो कुछ समझा पाए या कुछ बता पाए, तो उस चीज को पकड़ना। और ये हमें शुरू में डिफिकल्टीज जो दिखती हैं, उस टनल के अंदर हमें खुद लाइट ढूंढनी पड़ेगी। एज अ पेरेंट अगर हम एफर्ट्स डालते हैं तो हमें लाइट डेफिनेटली दिखती है। और बहुत सुंदर बात आपने कही, जब आप जैसे थेरेपीज के लिए गए और आपने वहां देखा कि और भी बच्चे हैं। इट इज नॉट द डिफिकल्ट फेज, बस उन बच्चों का पर्सपेक्टिव अलग है। तब आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे भी सीखने की जरूरत है, ये एक अलग सी दुनिया है जहाँ पे बच्चों की विचारधारा बहुत ही अलग और बहुत सुंदर है। तो उन बच्चों के जीवन में अपने आप को एक्सेप्ट कराना इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। और हैट्स ऑफ, आपने बहुत सुंदर तरीके से सक्षम को आगे लेके गए, और वो लाइट से आज मैं कह सकती हूँ कि सक्षम का नाम एक को ऑथर के जैसे बुक पर आया है। और इट इज समथिंग अ वेरी प्राइडफुल मोमेंट, नॉट ओनली फॉर द फैमिली, फॉर आवर टीम एज वेल। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर 2 कमेंट पढ़ना चाहूंगी वंदना जी।
रश्मि जी हमारे साथ देख रहे हैं और शी हैज मेंशन दैट अग्री दैट पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प्स यू कम योर फियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स एब्सोल्युटली। और पद्मा ज्योति जी देख रहे हैं, वो बोलते हैं जादू की छड़ी इज आवर लव एंड एक्सेप्टेंस। एब्सोल्युटली। और कोई एक्सेप्टेंस नहीं है जब तक हम खुद ना सोच लें कि यस, ये सब एक हमारा ही हिस्सा है। तो बहुत सारी जादू की झप्पी तो सबसे पहले वंदना जी आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए जब तक एक एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, तब हम इंक्लूजन ला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर हम ही उस डायलेमा में हैं कि एक्सेप्टेंस है या नहीं है, तो हम किसी सेकंड थर्ड पर्सन से कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि वो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करे जब मैं ही खुद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा। तो सबसे पहला जो एब्सोल्युटली। टुवर्ड्स इंक्लूजन जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ, अपने बच्चे को खुद एक्सेप्ट करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल वंदना जी, यहाँ पर एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूंगी। एक बच्चे का प्रोग्राम था, वो भी नॉन स्पीकिंग ऑटिज्म पे है। और हम जब उसके शो पर गए, वहां पर देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स थे। जब उस बच्चे के प्राइडफुल मोमेंट्स वो देख रहे थे, तब शायद उनको इंसाइट्स मिले कि दैट दे आर लैकिंग समवेयर, जिन्होंने अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया था। वंस यू एक्सेप्ट योर चाइल्ड विथ प्राइड, तब आप देख सकते हैं कि वो बच्चे क्या मैजिक एंड क्या वंडर्स सोसाइटी में लेकर आते हैं। तो बिल्कुल एक पेरेंट के जैसे आपने एक्सप्रेस किया, दैट इज रियली वंडरफुल। चलिए हम कन्वर्सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं वंदना जी। आपने बहुत सारी थेरेपीज बताई जो आपने की हैं और कुछ इफेक्टिव भी रही हैं। तो क्या वो थेरेपीज की जर्नी थोड़ी आप शेयर कर पाएंगे? कुछ पेरेंट्स को शायद उससे मदद मिल पाए। हाँ जी। तो सबसे पहला जो जरूरी स्टेप होता है, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और आपको पता चल गया है कि उसको इंटरवेंशन की जरूरत है, तो वेट मत कीजिए थेरेपीज के लिए। बिल्कुल राइट। अर्ली इंटरवेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ। अगर आपका बच्चा डायग्नोस नहीं भी हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि उसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, उसकी कुछ उसको कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की जरूरत है, तो आप अर्ली इंटरवेंशन एकदम से स्टार्ट कर दीजिए। अर्ली इंटरवेंशन कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर चाइल्ड्स लाइफ। जितना जल्दी हम उसके साथ थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उतना ही जल्दी वो हम बच्चे को समझ पाते हैं, बच्चा हमें समझ पाता है, तो वो कनेक्ट बनना इजी हो जाता है। क्योंकि फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो गया ना, तो फिर वो एक हैबिट बन जाती है, जिसे हम बिहेवियर का नाम देते हैं। वो उसमें से, उस शेल में से बाहर आना उसके लिए भी मुश्किल होता है, और हमारे लिए उसके वर्ड में एंटर करना भी मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। तो early intervention was one of the best thing that happened to Saksham. As I told earlier, that we started his therapies at 22 months, when he was 22 months old. Then we started his therapies. So therapies which he went through was speech therapy, then special education and OT and sensory integration. Sensory integration and OT very very helpful for him, क्योंकि जो उसकी टो वॉकिंग थी, हाइपर एक्टिविटी थी, उसके जो सेंसेस थे वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस नहीं आ रहा था। तो उसमें सेंसरी इंटीग्रेशन एंड ओटी में बहुत उसको ही यूज्ड टू बी वेरी काम, मतलब उसको एक अच्छा फील हमें जी। दिखता था कि मेरा बच्चा जो है वो बेटर फील कर रहा है। वो भागना दौड़ना, उसमें मेरा बच्चा खुश नहीं था, करेक्ट लगता करेक्ट। है ना, लेकिन उसकी उसके बस में नहीं था, वो उसके कंट्रोल में नहीं था। तो ओटी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन हो गया। फिर हमने बिहेवियर थेरेपी की एबीए किया सक्षम के साथ। ही वाज गोइंग टू बीएमआई, वेयर ही वाज लाइक 2 3 years इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन। तो वहां से भी उसको इंस्ट्रक्शन, रिसेप्टिव लैंग्वेज जो होती है कि किसी की जी बात जी। सुनना, उसको समझना, उसमें उसका बहुत इम्प्रूवमेंट आया। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डे टू डे लर्निंग, कलर्स को समझना, शेप्स को समझना, पर्सन को पहचानना, इसमें भी उसको बहुत हेल्प मिली इससे।
जो 1:1, जब बच्चा छोटा होता है उस टाइम पे 1:1 बहुत ज्यादा हेल्प करता है। साथ में अगर एक छोटा सा बच्चों का ग्रुप भी हो जाए तो हमारा हमें जो समझ में नहीं आता था, तो मैं ये लगता था कि केवल स्पीच, ओटी और ये सब जो थेरेपीज हैं यही करनी इम्पोर्टेंट होती है। एक और जो चीज मिस हो जाती है यूजुअली, वो होती है ग्रुप इंटरवेंशन। तो हमें करेक्ट। बच्चे को ग्रुप में भी एक्सपोज करना इन्वॉल्व जरूरी है, करें। क्योंकि जब वो सोशल एनवायरनमेंट में जाएगा तो एक तो वो दूसरे कैसे सोशल एनवायरनमेंट में हम कैसे डे टू डे कैसे वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, एक उसको फ्रेंड्स मिलेंगे। अकेला अकेले अकेलापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दे वांट करेक्ट। सम कंपनी। तो एक उनको थोड़ा चाहे हमारे बच्चे बोलते हो या ना बोलते हो, फ्रेंडशिप एग्जिस्ट एंड यस। दे डू केयर फॉर ईच अदर। वो अगर कोई नहीं आता है तो एक दूसरे को ढूंढते हैं। करेक्ट। है ना? करेक्ट। वो बोले या ना बोले, लेकिन फ्रेंडशिप हैज नो वर्ड्स। तो वो एक फ्रेंडशिप मिलती है। और साथ में क्या होता है कि जब हम सोशल गैदरिंग्स में जाएंगे, ग्रुप्स में जाएंगे, तभी एक्सेप्टेंस आएगी। अगर हम उस बच्चे को डिप्राइव करेंगे सोशल गैदरिंग से या ग्रुप से, तो जब वो जा ही नहीं रहा है सोशल एनवायरनमेंट में, तो थर्ड पर्सन उसको कभी समझ ही नहीं पाएगा। अगर करेक्ट। वो राइट। बचपन से ही उस एनवायरनमेंट में जा रहा है, तो दूसरे जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी समझना बहुत इजी हो जाता है। तो ग्रुप थेरेपी कह लीजिए, चाहे उसे आप थेरेपी का नाम दे लीजिए या एक्सपोजर कह राइट। लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप अपने बच्चे को किसी भी चीज से डिप्राइव नहीं रखें। अगर किसी ने बर्थडे पार्टी में बुलाया है, तो हमें होता था, ये ऐसी बात नहीं है कि एज अ पेरेंट हमें लगता था अरे ये तो वहां जाकर बहुत कूदेगा, रोएगा, चीजें इधर उधर करेगा, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें जाना है। करेक्ट। एक बार करेक्ट। होगा, दो बार होगा, तीसरी बार में वो लोग भी समझेंगे, मेरा बच्चा भी समझ जाएगा, दोनों साइड से एक्सेप्टेंस आएगी। लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं, तो वो कोशिश नहीं एक्सेप्टेंस नहीं, करेंगे। कोशिश तो हम राइट। दोनों साइड से करनी है तो हमें। वंदना जी, बहुत आई एम वेरी मच श्योर कि आज के सेशन से हमारे देखने वाले दर्शक और कई पेरेंट्स को बहुत सारे न्यू डोर्स ओपन हो रहे होंगे। जैसे वंदना जी ने कहा, इन अर्ली इंटरवेंशन आपके जैसे समझ में आता है कि देर आर सर्टेन चेंजेस और पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। सो आपको जितनी जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, आप एफर्ट्स लेना शुरू करते हैं, तो कई चीजें आपकी अर्ली पीरियड में ही रिकवर होती हैं। एज इन जैसे वंदना जी ने अपने केस में बताया, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सक्षम को ग्रुप लर्निंग में डाला। ग्रुप लर्निंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल थेरेपी, जहां आप बच्चों के माइंड को एक खुला एक्सपोजर देते हैं, whether the child is speaking or non-speaking. The friendship, the group definitely put a very beautiful impact. और इट वर्क्स एज अ थेरेपी। आप उनको खुलापन दीजिए और आप एक्सेप्ट कीजिए। सोसाइटी एक्सेप्ट करने से पहले हर बार यही एक बात है कि हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे बर्थडे पार्टीज में भेजा, उन्हें भेजिए, उन्हें एक्सपोजर दीजिए। सो वंडरफुल वंदना जी, आई एम प्रिटी श्योर कि आज का सेशन से बहुत सारे पेरेंट्स मस्ट बी स्माइलिंग ऑल ओवर। सो चलिए अब फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। वंदना जी, मैं अपनी तरफ से टॉकिंग फिंगर्स में से सक्षम के दो बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चंस यहाँ पर दर्शकों के बीच में रीड करना चाहूंगी। सो इफ यू परमिट मी, मे आई? यस प्लीज। Thank you so much. So this is a book in which Saksham has co-authored his thoughts. So I'll be reading from the chapter number 20. So the question asked was, what do you look forward to? What brings energy into your life? What pushes you back and how you deal with it? So here Saksham has replied in a very beautiful way. I must say it is a mature way, very sorted. Love and acceptance.
What pushes me back is mummy ki dant. I deal with it by thinking it's okay. So how beautifully very sorted वे में सक्षम ने इस बात का जवाब दिया है कि लाइफ इज वेरी मच सॉर्टेड एंड हैप्पी when it comes to love and acceptance. और मम्मी की डांट थोड़ी बुरी लगती है, but then I sort my own self by saying it's okay. So इट्स ओके, ये एक तो और डांटती रहती है। ये तो डांटती रहती है, मम्मी इट्स ओके। डांटती है, किसकी मम्मी नहीं डांटती, मम्मी का काम है डांटना। And this डांट is all about learning. So चलिए एक क्वेश्चन और वंदना जी, what are some of your hobbies? Please do share about your favorite song, movie, book, and why you like them. This question is from the chapter number 17. And here, Saksham has beautifully replied that I love watching YouTube videos about remedies and medical conditions. I love working on the computer. His favorite song is our lovely number, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना. Movie, The Lion King, and the book, Alphabet Book. So Saksham is very sorted कि उसको लाइफ में क्या उसके पर्सपेक्टिव है. He has very clearly defined in the book. So चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी. पेरेंट एडवोकेसी और अकोमोडेशन के बारे में वंदना जी आपके क्या थॉट्स हैं? एक ब्रीफ थॉट आपसे जानना चाहेंगे. पेरेंट एडवोकेसी एंड अकोमोडेशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द किड्स मैम. फॉर द किड्स, ओके। हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द जितने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चे होंगे जो अपनी एडवोकेसी अपने आप कर पाते हैं. एंड इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग देन व्हेन दे टॉक और व्हेन दे write through talking fingers. It's a very beautiful thing where they self advocate for themselves. मेरा ये मानना है कि हमें अपने बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहना है. हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो बता देंगे, लेकिन जो अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं थॉट्स, वो तो लिख कर या टाइप कर या बोल कर बता देंगे. अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे एडल्ट्स होंगे, बहुत सारे टीन्स ऐसे होंगे जो अपनी सेल्फ एडवोकेसी नहीं कर पाते होंगे. तो उनके लिए खड़े होना, उनकी बात को पहुंचाना, उनको समझना और वो क्या समझ रहे हैं उसको दूसरे लोगों को समझाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बीइंग अ पेरेंट, हम अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे अगर हम उनके लिए उनके राइट्स के लिए, हम उनकी जो उन्हें मिलना चाहिए उसके लिए अगर हम ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो और कौन बढ़ेगा. बिल्कुल सही बात है तो जी. हमें उसके लिए एक अकेले से तो नहीं हो पाएगा. मान लीजिए कि हम एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं हमारे बच्चे के लिए, तो एक अकेले की वॉइस तो नहीं दबी जाएगी. उसके लिए हमें साथ मिलकर चलना होगा. साथ साथ मिलकर जब हम एक साथ आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज भी सुनी जाएगी, सोसाइटी तक जाएगी. तो हमारी आवाज सुनी जाएगी और हम एक चेंज ला पाएंगे. तो पेरेंट एडवोकेसी बहुत जरूरी है. स्पेशली जब अब अगर हम देखेंगे ना, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी लिए, उन्होंने एजुकेशन भी ले लिए, लेकिन वोकेशनल की ओर जब वो जाते हैं ना, तो वहां पर अभी भी बहुत बहुत सारे गैप्स हैं, स्पेशली जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं उनके लिए. तो अगर हम एज पेरेंट्स आगे आए अपने बच्चों के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट से तो करना ही है, लेकिन हम खुद भी इनिशिएटिव्स लें अपने बच्चों के लिए, तो हम एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं. लाइक हम में से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो जो कि मीडिया में काम करते होंगे. तो जो हमारा, जहां पर हमारी पकड़ है, हम उस फील्ड में अगर एडवोकेट करेंगे अपने बच्चों के लिए, तो वी कैन ब्रिंग अ चेंज. दैट इज रियली ब्यूटीफुल वन. And बिल्कुल सही regarding कहा. accommodations, yes,
हमारे बच्चों को विजुअल सपोर्ट और क्लैरिटी की जरूरत होती है, वो कमेंडेशन हमें अपने बच्चों को देने हैं। और जहाँ पर भी वो जाएं, जिस भी वर्किंग एनवायरनमेंट में या स्कूल एनवायरनमेंट में, वहां जहाँ भी वो जा रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहां पर जाकर उन उन लोगों को जो कि जिनको शायद ऑटिज्म नहीं पता है, शायद उनको हमारे बच्चे के लिए क्या कैसे वो काम करते हैं, किस तरह की अकोमोडेशन देने से वी कैन मेक बेस्ट आउट ऑफ देम, वो शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो एज पेरेंट्स और एज being the part of the community, it is our responsibility to reach out the schools, reach out the working environments, to reach out the restaurants, the metro stations, everywhere, and spread the awareness that this is the way they can understand you. You need to be clear, you need to be with pictures, or you need to be very precise with your words. ये इस तरह की एडवोकेसी अगर हम करेंगे तो वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग अ चेंज। राइट राइट राइट, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर तरीके से सॉर्टेड वे में आपने रिप्लाई किया है, एंड आई एम रियली अप्रिशिएट। जैसे शुरू से ही आपने कहा कि अगर हम एक्सेप्ट करते तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती। यस, बहुत पहले की बात, जैसे आपने बताया सक्षम 21 साल का है, और पहले सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और चीजों को डायग्नोस करने में टाइम लगता था, पर आजकल ये सब नहीं है। वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस, वी हैव सीन द चेंजेस। सो यस, अभी अर्ली इंटरवेंशन इज मस्ट, उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स वर्क टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ आवर किड्स। सो बहुत सुंदर सेशन रहा मैम। Saksham is 16 years old. Okay, so sorry, Saksham is 16. Okay, okay. Yes. So, Vandana ji, if you have a book in your hand, would love to Yes. show it to the viewers. And just So, हाँ जी. Yes, here is the book. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. So, Vandana ji, बहुत सुंदर रहा ये session. That was really an insightful hour spent with you. And Vandana ji, who truly believes that bringing different perspectives together leads to higher quality decision making. So, वंदना जी, अगर सक्षम अभी आसपास है तो क्या आप मुझे अगर 1 मिनट देंगे तो मैं उसे बुला दूं। अगर वो आराम से आ पाएगा? हाँ जी, कंफर्टेबल। बस 1 मिनट। जी बिल्कुल। ये बहुत इंसाइटफुल सेशन हमारा चला है पिछले 1 घंटे से, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे देखने और सुनने वालों को। वंदना जी ने बहुत सारे डीप थॉट्स हमारे साथ शेयर किए हैं कि किस तरीके से एक छोटे छोटे एफर्ट्स हमारी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। टनल डार्क जरूर है, बट देयर इज अ होप। वी शुड कीप कमेंटिंग। Okay, so Banali Gupta ji saying great conversation. You can say hello. Hello. Namaste. Namaste. Saksham, how are you? Namaste, Saksham, how are you? I am like you. You want to sing a song? Yes. मैम you can. सक्षम की साइड पे थोड़ा कैमरा कीजिएगा। तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यस। सो सक्षम, कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? जिंदगी। एक सफर सुहाना, या कल क्या हुआ, किसने जाना, उले उले ओ, टी 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 टी, मोटा ऐसे बात हो है। Well done. Well done. Hey. Well done, Saksham. You did a good job. थैंक यू सो मच सक्षम, Just say थैंक्स अ hello. लॉट। Namaste. सक्षम, ये हमारा भी नमस्ते। फेवरेट सॉन्ग है। देखो तुम। सो सक्षम, ये हमारा सबका फेवरेट सॉन्ग है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द वॉइस टू दिस सॉन्ग। यू हैव sang it Thank you so very much. beautifully. Thank थैंक यू you. सो मच वंदना मैम। Can go, Saksham. हाँ जी। Saksham is totally in छुट्टी mood today. हाँ, सब छुट्टी मूड में है, वेकेशंस है अभी, सब छुट्टी मूड में है। So thank you so much to Saksham for being in the chutti mode. He has come over. So once again, Vandana ji, thank you so very much for gracing our platform with your esteemed presence.
It was really an insightful and thoughtful session with you. I'm sure parents who have joined us now and who will watch us later will definitely get many takeaways from it. So wishing Saksham happiness and success in many multiple folds. Thank you. Thank you. So a big thanks to all our viewers. Without your support, we wouldn't have reached here. And many more thanks to the team that is working and sharing their support behind the curtain. So before I take a leave, don't forget that we all are respected and accepted here. So educate patiently, advocate passionately, and inspire consistently. So thank you so much, Vandana ji, once again. Would love to have one more session with you soon. Thank you.